Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की मेरी दूसरी वीडियो है। This video is purely about surds. What is the surd? Surd क्या है? किसी भी कह लें प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दें तो दैट इज द सर्ड। अब ये प्राइम नंबर क्यों बोला गया है? क्योंकि देखें, अगर हम फोर को स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो उसका आंसर टू निकल आता है, तो वो दैट इज नॉट ए सर्ड। दैट इज नॉट द स्क्वायर रूट फॉर्म, दैट इज नॉट ए सर्ड फॉर्म। बट व्हेन वी राइट square root of 2, 2 is a prime number. So we cannot get the exact answer. We take the rounded off number of answer by using calculator. So this is our surd. ठीक है। Similarly, अगर आप देखें square root of 3, square root of 5, all these are prime numbers. 5, 7, 11, 13, all these are prime numbers. So when we write a number in this form, so this is called surd. I'm going to share a book with you for the further working on surd. What are some questions on the surds, how to convert the surds, how to convert a index form into a surd form। तो उसमें आपको ये मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें। पहले ही उसने डेफिनेशन आपको दी है कि इसको सर्ड में कैसे लिखना है, सर्ड क्या चीज है। तो डेफिनेशन में देखें, उसने लिखा है जी कि a surd is just a root that is irrational. Example are under root 2, under root 3, under root 5, etc. When we write under root 2, what we write written is 100% accurate. But the value given by your calculator is 1.414213562 is not because it has been rounded off. In a similar way, we write an answer of say 2 pi because 2 pi, this is an accurate answer because this is accurate statement, whereas 6.283185306 is not accurate. This is rounded value, right? तो इस तरह से we can define the surd। अब कैसे सर्ड को हम सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट अरिथमेटिक सर्ड्स, उसने आपको एग्जांपल दे दिया है कि इफ वी मल्टीप्लाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी, तो योर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। दिस इज सर्ड फॉर्म। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो square root is common here, so we can write them in a common square root, that is under root a over b. But in distributive rule, under root a under root c plus b under root c is equals to a plus b under root c, because c is common. Square root of c is common in these two. So we'll take square root of c common. So we'll write a plus b whole bracket, then square root of c. तो द डिस्ट्रीब्यूटिव रूल नंबर 2 क्या है जी? ए स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, तो यू विल गेट ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सी। So these are the rules. You can see the example here. Example 2.8, square root of 2 multiplied by square root of 2. So your answer will be under root 4 because square root is common. So multiply then, so you will get answer 2. Similarly, under root 2 multiplied by under root 3, your answer will be under root 6 common square root. Similarly, square root of 32 को factorize करें, पर prime factorization करें, so at the end you will have a prime number in the square root. So this is your surd form. But square root of 24 or square root of 6 cancelized. So under root 4 answer is 2. So this is not the surd form. Similarly, 3 under root 2 plus 2 under root 2 is equals to 5 square root of 2. So square root 2 common. So your answer is 3 plus square root of 2. Sorry, 5 plus square root of 2.
सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो बाय फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल गेट 4 अंडर रूट 2। मैं इसको ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये आपको समझ नहीं आया होगा, ज़रा इसको देख लें। ये वाला जो ई एफ पार्ट है, एफ पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 को आप लोग लिख सकते हैं, जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो इसमें आपने ये एक पेयर बनाया, एक और पेयर बनाया, तो ये पेयर इसका दरअसल 4 बन जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो एक इसका 2 दफा आ रहा है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, और सिंगल जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह गया, तो ये आपका बन गया 4 अंडर रूट 2। सिमिलरली +3 अंडर रूट 2 है ये, आप देखें अंडर रूट 18 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टर्स बनाएं इसके, तो वो बन जाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का पेयर बन गया है, तो 3 बाहर आ गया, ये उसने लिख दिया 3 अंडर रूट 2। तो इन दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो कॉमन आ गया, तो आपका आंसर जो है वो आ गया 4 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, आंसर इज 7 अंडर रूट 2। दिस इज द वे टू सॉल्व the surds, add surds, multiply surds, divide surds. I have given you the method here. Now come towards the next part. uh, अब ये देखें कि इसमें उसने दिया हुआ मिक्स्ड नंबर्स। मिक्स्ड नंबर में एग्जांपल 2.9 नीचे देख रहे हैं आप, तो इसमें उसने सिंपली मल्टीप्लिकेशन बताई है कि मल्टीप्लाई कैसे होना है। तो अगर आप गौर करें इसको, तो पहले 2 के साथ सारे को मल्टीप्लाई किया है, फिर अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये देखें, ये उसने, ये इस 2 के साथ इसको 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अंडर रूट 3 आ गया, ये वाला। ठीक है, इसके बाद 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ गया 3 अंडर रूट 2, बस फिर 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 किया तो 3 अंडर रूट 6 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें आप अगर, तो ये आपका आ जाएगा जनाब आलू, सॉल्व करके ये बन जाएगा, क्या बनेगा जी, ये 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 ऐड होके 5 अंडर रूट 2 आ गया, और ये था आपका 2 प्लस 6, ये बन गया, नहीं सॉरी, ये ऊपर वाले का सिंप्लीफाइड कोई आंसर नहीं बनता। 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 ये सब के डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको हम इसी तरह ही आंसर कर देंगे। अब इसमें देखें, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को फिर उसने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह फिर 3 अंडर रूट 2 को इसने मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आ गया 1 से, तो ये आ गया 3 अंडर रूट 2। इसी तरह उसने 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 के साथ, तो ये बन गया 6। अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया जी, 2 और 6 को ऐड करें तो ये बन जाता है 8। इसी तरह फिर 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 करें तो ये बनता है 5 अंडर रूट 2। दैट्स इट फॉर दिस। अच्छा, अब आगे चलें जी, ये स्क्वायर है, तो इसमें आप चाहें तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a+b होल स्क्वायर, तो उसको यूज करेंगे तो आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। अच्छा, अब आप देखें, इधर अगर फार्मूला लगाएं हम a+b वाला, तो a² प्लस 2ab+b² बन जाता है फार्मूला, अगर हम फॉर्मूला लगाएं। लेकिन फॉर्मूला जो है वो फिर इसमें, इसने जो किया हुआ है, इसने फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ, इसने सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फार्मूला इज द बेस्ट। ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए है आपका 2, तो 2 स्क्वायर
प्लस 2ab, 2 × a है आपका 2 × 3 √2 प्लस b है आपका 3 √2। तो ये आपका आ गया 3 √2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने आइडेंटिटी। तो ये हो गया 4 + 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 √2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 √ स्क्वायर 2 को ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ×2। तो ये आपका आ गया 4 + 18 +12 √2। तो सिंप्लीफाई करें तो 22 + 12 √2 फाइनल आंसर हमारा बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 + 12 दिया है उसने। तो उसको चाहें तो आप वैसे एक्सपेंड कर लें, चाहें तो आप फार्मूला लगा लें, वो आपकी मर्जी है। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें? ये देखिए नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? इसमें आपने जो आपका वो नंबर होता है उसको आपने कर देना होता है, साइन चेंज करना है। जो प्राइम नंबर है यहाँ पे, सॉरी इरेशनल नंबर है, ये देखें 6 + 3 √3। ये आपका जो है वो है कह लें कि इरेशनल नंबर है। तो इसका साइन अगर चेंज कर देंगे तो वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। स्क्वायर रूट वाले को कह दें तो प्राइम नंबर का जो उसने स्क्वायर रूट लिया उसको हम कह देंगे कॉन्जुगेट। ये 6 + 3 √3 और 5 - 2 √3। तो नोटिस द डिफरेंस इन योर आंसर्स टू द क्वेश्चंस। ये सारा उसने सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर 9 आ रहा है, इसका आंसर 13 आ रहा है। तो ये इसका कंजुगेट है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें ना, 6 + 3 √3 और 6 - 3 √3। यानी कि जो प्राइम जो आपका इरेशनल नंबर का नंबर है इसको हम कह देते हैं कॉन्जुगेट। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। अगर इसके में 5 + 2 √3 है तो जो थर्ड वाला नंबर है उसका साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन उसने करके दिखाई हुई है। आगे चलते हैं, आगे क्या है इसका? ये आप देख सकते हैं सारा उसने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। कॉन्जुगेट के साथ क्या रिलेशनशिप, रैशनलाइजेशन द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है? ये एग्जांपल दी हुई इसने 4/√6। तो नीचे √6 है, √6 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो सर्ड से फ्री हो गया। तो इसलिए ये रैशनलाइज हो गया। इसको हम कह देंगे जी ये इररेशनल नहीं रहा, अब ये रैशनलाइज हो गया। तो ये इस तरह से आपका, ये देखें इसके कॉन्जुगेट के साथ 3 - √5 है। तो यहाँ पे 3 + √5 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनलाइज हो गया। ये स्पेशली ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जो बच्चे 2025 में जून में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये हैं। उनका सिलेबस चेंज हुआ हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये जो आपकी बन रही है, जो वीडियो बनाई है मैंने, ये उसके अकॉर्डिंगली है ताकि वो बच्चे जो हैं वो इसको देखें और सीख लें। जो कोई नई नई चीज़ें न्यू थिंग्स हैं उसके लिए। तो अब ये आगे देखें स्क्वायर रूट्स ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। तो ये तो कोई इससे मुश्किल, अब ये इसमें स्क्वायर रूट ऑफ मिक्स्ड नंबर का क्या मतलब है कि आपको उसने कहा कि जी फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस वन। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे करना? वी स्टार्ट एज्यूमिंग दैट द आंसर इज द ऑफ द सम सेम फॉर्म a + b √3। यानी इसको हम a + b √3 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका ले लेते हैं स्क्वायर और फिर का लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वाली साइड जो है इसको हम कह देंगे कि ये 31 + 12 √3 के इक्वल है। इधर से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके यानी स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला लगाया। लगा के तो आपके पास आ गया a² + 2ab √3 + 3b² इज इक्वल टू जो उसने गिवन है। तो उसको कंपेयर कर देंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। अब देखें कांस्टेंट कौन सा है, a² और 3b² कांस्टेंट्स हैं।
तो a² + 3b² जो है वो उसकी एक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 31। और दूसरी जो सर्ड फॉर्म है उसको सर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ये अंडर रूट 3 वाली है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो इसका 2ab जो है वो 12 के इक्वल हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। 2ab = 12 अंडर रूट 3 को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये स्क्वायर रूट वाला फॉर्म खत्म हो गई, तो बाकी रह गया 12। उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 6 = ab। अब इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। ये सेकंड इक्वेशन में से ए या बी ले लें, तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास ये सोल्यूशन में देख लें, ए की वैल्यू a² + a² = 4 आ जाएगी, तो a = 2 और -2। इसी तरह b² = 27, तो b +3 दोनों होंगे। तो आपके पास द स्क्वायर रूट्स ऑफ 31 + 2 अंडर रूट 3 होंगे 2 + 3 अंडर रूट 3 एंड -2 अंडर रूट 3 यानी कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 31 + 12 अंडर रूट 3। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन, ये तो एग्जांपल सॉल्व है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज में, फिर मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ये भी एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई है, इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें और इसको समझ सकें। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये आ गया जी ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। ये भी वही है जो हम पैथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ वही कुछ है दिया हुआ जो ऊपर था उसमें। अब आप आ जाएं जनाब, ये एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपको एग्जाम्पल में किए थे सारे, फिर भी एक आधा पार्ट में आपके लिए सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको आपने करना है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की बन जाएगी। 2 × और 24 चाहिए ना, 2 × 2 × 2 × 3। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पेयर बनेगा वो सिंगल नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी 2 अंडर रूट, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 6। ये सर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। इसी तरह ही आप आ जाएं जी 75 है, तो 75 आपको समझ आ जानी चाहिए कि 75 है 5 × 5 × 5 × 3। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़े लिखते हैं, पर ये लिख दिया मैंने। तो ये 5 का पेयर बन गया, तो ये हो गया 5 √ 3। इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई ऑल दीज एंड सेम विद दिस। इसमें आपने √24 प्लस √486 को सॉल्व करना है। सॉल्व करके फिर आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको कर लेना। मसलन 24 का आप देखें, इसको अगर हम 6 से 24 पे डिवाइड करें तो ये हमारा बन जाता है 24 × 2 = 48 और 6 ये नहीं होता। अब मैं इसको आपको करके ही दिखा देता हूँ। 24 + 4 86, तो आप ये लिख लें जी 24 को किस से मल्टीप्लाई करें। 24 तो नहीं बनता, कुछ और ही बना लें। तो इसको आप कर दें 24 आपका होगा 2 अंडर रूट 6। चलो जी इसको बना दें 2 अंडर रूट 6। इसको रेस करूं, फिर करते हैं आगे चलते हैं। 24 को आप लिख दें जी 2 अंडर रूट 6, जो ऊपर हमने सॉल्व किया है ये, ठीक है। ये 2 अंडर रूट 6 ये ऊपर निकाला हुआ हमने। तो इसको आप 24 को लिख दें 2 अंडर रूट 6 प्लस। अब 486 को आप देखें कि किस पे डिवाइड होता है। ये 6, इसको अगर 6 पे डिवाइड करें तो ये 81 पे होता है। 81 × 486 बनता है। 6 × 6, 6 × 48, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट बन गया 9। तो आपके पास इसका आ गया जी आंसर 2 अंडर रूट 6 + 9 अंडर रूट 6। तो
अंडर रूट 6 कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन, तो 9 + 2 11, 11 स्क्वायर रूट ऑफ 6 विल बी द आंसर। इस तरह से आपने इनको, इनके जो सर्ड्स हैं वो कॉमन करके, यानी स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी एक नंबर कॉमन करके, तो फिर आपने इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालनी है। ये एक पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, ए पार्ट। इसी तरह बी पार्ट में देखें, ये दोनों में ऑलरेडी 75 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 - 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे होगा 1, 2 - 1 क्या होगा जी? 1। तो आंसर आपका हो गया 20 √75। आप 75 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये 25 3 × 75 होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 5 √3, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सिंप्लीफाइड आंसर आंसर आप लोगों ने देना है। तो ये मैंने दो दो पार्ट्स आपके लिए कर दिए हैं, इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी आप करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट करेंगे तो मैं उसको देख लूंगा, दोबारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अगले पार्ट में क्या है, आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या है वो देखते हैं। ये मैं रेस करके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें फर्दर क्या है। तो लो जी, ये आपका आ गया नेक्स्ट पार्ट। इसमें भी देखें, रेशनलाइज दीज सर्ड्स। अब ये इसने सीधा वर्ड यूज कर लिया, गिव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ a √b/c। चलें जी, ये देखें, अब ये है √5/√3। तो वही बात मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि इसको जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये आपका डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा √15 पेयर बन गया, तो ये बन गया 3। तो √15/3 आपका आंसर आ गया, ये इस फॉर्म में। यहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है तो वो 1 है। अब इसको देखें, ये आपका आएगा, मेंटली बता दें आप, ये आ जाएगा √2/2, क्योंकि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 हो जाएगा। इसको देखें आप, ये है 24 को फैक्टराइज करें, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनती है जी √2 × 2 × 2 × 2 × 3 ओवर √5। अब इसमें देखें, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होके एक पेयर बन गया ये, तो ये पेयर बार आ गया, ये आ गया 2 √6 ओवर √5। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अभी इसकी प्राइम उसकी रैशनलाइजेशन नहीं हुई। इसको जब आपने रैशनलाइज करना है तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा, ये इधर से इधर आ रहा है, ये आ गया जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी स्क्वायर रूट 5 और इधर भी स्क्वायर रूट 5। अब ये आपका आ गया जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30, 6 5 जार 30 ओवर 5। अब 30 के कोई ऐसे प्राइम फैक्टर्स नहीं बनते जिन कोई पेयर बने और आंसर बाहर निकल आए, इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये वाली फॉर्म यहाँ पे बन गई। ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 30 हो गई और ये आपका C5 हो गया। इसी तरह से आपने रैशनलाइज करना है। अब देखें, फर्ज करें ये वाली देखें, इसको देखें, ये दोनों में डिविजिबल है ये दोनों, तो इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो जो स्क्वायर रूट वाला है वो स्क्वायर रूट वाले से कैंसिल हो सकता है। मसलन 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 12 ओवर √2। लेकिन हमने ये फॉर्म देनी है, तो इसको √2 के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ गया जी 12 √2/2, क्योंकि 2 का पेयर बन गया, 2 6 × 12। तो आंसर बना बच्चों 6 √2। दैट्स इट। सिमिलरली
इनको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 8 के टेबल पे हो सकते हैं कैंसिल, कैंसिल करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी 9 7 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 पे के 3 पे कैंसिल हो सकते हैं। और ये 3 3 9 और 3 2 18। तो ये इस तरह से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसने अब ये कहा है कि इसको a+b√c/d वाली फॉर्म में दें। तो इसको हम कहते हैं टू रेशनलाइज दैट दीज सर्ट्स। तो रेशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, आपको एग्जाम्पल में बताया था उसने कि ये जो इसका कॉन्जुगेट है 1 - √3 का कॉन्जुगेट, उसको आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 + √3/1 + √3। ये मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वो एज इट इज ही आ गया, 1 + √3 ओवर। अब ये देखें, ये a+b कह सकते, एक इसको आप a+b कह सकते हैं और इसको a-b कह सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, a+b × a-b। a+b × a-b, ये आइडेंटिटी है। तो ये होता है a² - b²। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1a हो गया और √3 आपका b हो गया। तो 1 का स्क्वायर हो गया जी 1, और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस का साइन, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का साइन है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1 + √3/2। ये वाली फॉर्म बन गई। इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलें, देखते हैं आगे क्या है। आगे है जी बी पार्ट, 1/3 + √2। तो ये भी उसी तरह ही 3 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी 2+, इसको आप 2 + √5 से मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेंगे। नीचे भी ऊपर भी 2 + √5। अब यहाँ तो ये सारे वन वाले, इस पे आते हैं ना जरा हम। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये 1 + 3 √3 वाला जो है, इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं। अच्छा, आप देखें, इसमें आपने 2 + 2 √3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? लेकिन इससे पहले आप यहां से देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें। जब आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो वो बन गया आपका। अब यहाँ पे आपको ये भी कंफ्यूजन होगी कि जी वो फिर उस 2 का क्या करेंगे। तो मैं ज़रा इसमें स्पेस बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर मूव कर लूँ, ताकि आपको समझ बात सही तरह से आ जाए। ये स्पेस बन जाएगी तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब ये देखें, इसमें आपने स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर में से पहले आपने 2 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है? 2 कॉमन ले लेना है। अब जब ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया, हम ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये ई पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया जी 1 + 3 √3/2 कॉमन, 2 × 1 - √3। इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको नहीं छेड़ना। अब इसका कॉन्जुगेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका कॉन्जुगेट लेना आपने। 2 को नहीं साथ लेके जाना, इसका कॉन्जुगेट, यानी 1 + √3 ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे भी 1 + √3। यानी कि अगर कुछ कॉमन आता है तो पहले कॉमन ले लें, फिर बाद में सॉल्व करें, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो अब देखें कि ऊपर है 1 + 3 √3, इन पे लगा लें ब्रैकेट्स। और ये है 1 + √3, नीचे भी हो गया, इस पे भी ब्रैकेट लगा लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी।
अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो उसी तरह ही 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 3√3 को मल्टीप्लाई करें। ये मैं कर देता हूँ आपको। 1 आ गया, प्लस √3 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 आ गया। अब बारी आ गई 3√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 3√3, प्लस अब यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो बाहर स्क्वायर रूट के बगैर जो नंबर है वो स्क्वायर रूट के बगैर वाले से 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। स्क्वायर जो हो जाना, 3 3 का स्क्वायर हो गया तो वो 3 बन जाएगा, ओवर। अब ये 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, इस 2 को नहीं छेड़ना आपने। ब्रैकेट लगाएं। अब उसी तरह ही a+b × a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 3। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 से √3 को मल्टीप्लाई इधर ही मैं कर देता हूँ, आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। ये 2 ऐसे ही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया √3 आ गया, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, और जब माइनस से √3 को प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, -√9, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, ये हो गए कैंसिल। तो आपके पास आ गया 1 - 3। क्लियर। अच्छा, अब आप देखें कि आपके पास फाइनली आ गया 1 + 3 3 = 9, ये 3 3 = 9 आपके पास आ गया। और ये दोनों √3 वाले हैं, तो इधर 1 है, तो 3 + 1 4 √3 ओवर 2 × 1 - 3 = -2, ये -2 आ गया। अब आपके पास आया जी 9 + 1 10 अंडर प्लस 4 √3 ओवर -4, 2 2 = 4 -4, फिर ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 5 + 2 √3 ओवर -4। 2 कैंसिल हो गया, 2 2 = 4, तो योर आंसर विल बी 5 + 2 √3 over -2. That's it. This is the final answer. In this way, you will solve all these remaining questions. If you feel any problem in solving these questions, मैं आपको दोबारा से again I am telling you, आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रैशनलाइजेशन की बात को समझें। मेरे पास जो अभी जो मैंने अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आपको सारी बात समझ आएगी कि ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी किए हैं रैशनलाइजेशन के, ये सारे जो है ना वो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने सॉल्व कर दिए हैं। जो हमारे O3 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2025 में एग्जाम देना है, तो ये उनके लिए सिलेबस में जो चेंज आई थी वो मैंने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर फर्दर आप लोगों को हो तो यू कैन टेक्स्ट मी इन बॉक्स और एट माई कह लें कि वो क्या है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, अल्लाह हाफिज, एनफ फॉर दिस डे।